This was the eve of the 8th round of talks. Rewari, Haryana. Tear gas used to stop farmers marching into Delhi. ये हमारे लिए जंग का मैदान है, हम डटे हुए हैं. On a day where farmers were pelted with rain in freezing temperatures. The 8th round of talks on the 38th day of protest. The meeting started with homage to farmers who have died during the agitation, over 40 of them. 8th meeting, no breakthrough achieved. Next meeting on 8th January. Farmers now have issued an ominous threat. घर नहीं जाएंगे, बता दिया. कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं. The government firm, laws will stay. सरकार ने कानून बनाया है और सरकार ने कानून बनाया है तो किसान के समग्र हित को ध्यान में रखकर ही कानून बनाया है. The Kisan Kranti peaks. Good evening, you're watching To The Point. I'm Preeti Chaudhary. So the 8th round of talks were completely inconclusive. It's day 38. The next day is the 8th of Jan. What's going to come out then? Let's quickly take you through what ensued just about 20 minutes ago when the 8th round of talks with the farmers and the government concluded inconclusively. Sources have revealed to us that the MSP biggest flashpoint continues to remain the biggest sticking point as well. Most farm union leaders who attended this meeting are very clear. Take back all 3 laws, don't waste our time is what they are saying. The government's very firm on its account, saying these laws are for your own good. Sources further have added that during the talks, farmers were adamant on their demand that all 3 laws be rolled back and rejected the government's proposal to form a joint committee to reach any common ground. Now, like I said, the next round of talks are going to be on January 8th, 2 p.m. After the meeting, Union Minister Narendra Singh Tomar also said that the centre is for a clause-by-clause discussion, which the farmers had rejected earlier as well, adding that the talks will soon yield results. This is what the government hopes. Remember, in the last round of talks held on December 30th, agreement was reached on 2 demands of farmers, which included repealing of power bill hike and penalty for stubble burning. जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है उस पर लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके. इसी पर बात चलती रही. थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. बातचीत हुई और 3 कानून पर बातचीत हुई. हाँ, और उसके बाद में नहीं कोई सहमति बन पाई और किसानों ने स्पष्ट कहा और एक सुर में कहा कि कानून वापसी से पहले कोई समझौता नहीं. ठीक है, ठीक है. सरकार का क्या रुख है? पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें आप लोगों ने साफ कह दिया था कि 3 काले कानून जो आप लोग कहते हैं उनको वापस लेने पे बातचीत होगी और एमएसपी पे बात. इन दोनों मुद्दों पे क्या बात हुई? एमएसपी पे आज नहीं चर्चा करी, उसी दिन एमएसपी पे भी चर्चा होगी. आज पूर्ण रूप से इसी पे ही हुई. देखो, जब हम बस से आए थे, ये मीडिया वाले आपके साथी हैं, उनको बता के गए थे कि इस मीटिंग से कुछ नहीं सिद्धांत निकलेगा. ये जो है सरकार कारपोरेटों की सरकार है, बड़े सरमाएदारों की सरकार है, साम्राज्यों की सरकार है. इनके हाथ में कुछ नहीं मानने वाला. आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, ये लोगों की सरकार नहीं जी. ये उन्होंने कुछ करना हुआ जब उनसे पूछेंगे, ये अंबानी से पूछेंगे या अडानी से पूछेंगे. जब सत्ता से बाहर होते हैं, तो लोगों की बात करते हैं. जब सत्ता में होते हैं तो सरमाएदारों की बात करते हैं. So clearly, what one can see and pick up is a massive trust deficit between the government and the farmers. I want to quickly go, before I go to our panelists this evening, I want to cut across to Kamaljeet Sandhu, who was tracking this 8th round of talks between the farmers and the government. Kamal, can you quickly get us up to speed? There is now going to be the 9th round of talks. How did these talks go? Was there any middle ground reached that could conclude on the 8th of Well,
it's the middle ground which seems to be missing. With no breakthrough, that means the stalemate only continues, and it's only Tariq pe Tariq. Another date being set. This time it's the 8th of January, 4 days from now. But the expectations from that also are not too high. The farmers are adamant they want repeal of laws, of the farm laws, and nothing else other than that. This is what is a sticky point even with the government, because they say we are willing to listen to you, we are willing to concede to your demands, we are willing to bring in amendments, but don't tell us to take back the laws. That is something that the Modi government has made it very loud and clear. And once that announcement was made in the meeting, there were hardly any exchange of word. Now the government on its part said we've already conceded to 2 major demands. However, the government has said that whether it's about the stubble burning, the parali burning, or for that matter the electricity bit, are something that the government had conceded to long back then. The matter is still about the 3 farm bills, and that is why now we've heard from the farmers there's been little headway. However, there seems to be a legal remedy. Will Supreme Court now be the only way out? Can a committee be decided? The farmers have earlier said the committee is not something which is agreeable because that will push back the dates. But with a logjam of this kind, where both sides are stuck to their own position, it seems very unlikely that a breakthrough will be possible. Somebody has to blink first, somebody has to bend first. Otherwise, these talks are just about restating the position. Right. And that is where things really are not moving forward, Preeti. Right. So little expectation even from the next round until and unless some out-of-the-box idea comes through. And what happens if the next round is also unsuccessful? Let's just hope that's not, because somebody's got to blink, and both sides have dug in their heels. 8th round of talks, 38th day. Appreciate you joining us, Kamal, with the latest. Let's cut across right now to our panelists. I have Gopal Agrawal, Bharatiya Janata Party spokesperson. I have Ashok Balyan, farm leader. I have Savit Malik, National President, Kisan Union. गोपाल अग्रवाल जी, आप ही से शुरू करते हैं। साफ जो किसानों ने तो यही बोला है, अगर कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। देखिए, ये थोड़ा एडवेंसी इस तरह की मुझे नहीं लगता कि ये किसानों के हित में जा रही है बात, क्योंकि सरकार को जब भी कोई सोचना है या कानून बनाना है या काम करना है, उसमें कई स्टेक होल्डर और कई स्टेट्स और सब चीजों को ध्यान में रखना होता है। किसानों की अगर वर्तमान जो एजिटेशन कर रहे हैं, उनकी कुछ कानूनों को लेके, इन तीनों रिफॉर्म्स को लेके कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, तो उसको सरकार पहले भी अपने हिसाब से अमेंडमेंट के लिए तैयार हो चुकी है। सरकार ने कई स्टेप्स बैक ट्रैक भी किए, लेकिन किसान अपनी बात पे अड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि यह आशंका जो उनकी हो रही है कि एमएसपी सरकार हटा देगी, खत्म कर देगी, उसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि आपको जो चाहिए वो हम करने को तैयार हैं, आशंका को दूर करने के लिए। अब आशंका के ऊपर किसी कानून को रिपील कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, यह डिमांड थोड़ी अनजस्टिफाइड लगती है। किसान भाइयों से मेरा करबद्ध निवेदन है, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि आप बताइए ना क्या प्रॉब्लम है, आप इस जिद पे क्यों अड़े हैं कि कानून खत्म कर दो। आप इस कानून से आपको क्या समस्याएं हैं इन तीनों से, और कैसे आपको लगता है कि ये एमएसपी खत्म कर देगा और एपीएमसी स्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर देगा, तो वह आशंकाओं को हम कानूनी तहत अंतर्गत दूर करने के लिए तैयार हैं। फिर उसके बाद मैं एक बार राइट गोपाल अग्रवाल जी, मैं सवित मलिक को भी लाना चाहूंगी इसमें। मलिक साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आपकी सारी डिमांड्स तो मीट कर ली हैं, अब क्यों नहीं घर वापसी? अगर इन्होंने सारी डिमांड पूरी कर ली है, कहाँ पे की है पहले तो यही बता दे, और दूसरी बात यह है कि किस कागज पर लिखी है, कहाँ इन्होंने जिम्मेवारी ली है। अरे लोकसभा का, राज्यसभा का सत्र बुलाइए और उसमें कानून पारित करिए। क्या करना है आपको? ये कागजों में थोड़ा ही होता है कि बोलचाल में हो गया, कह दो हम किसान की आय डबल करेंगे। डबल होगी आय? जो हमारा उर्द 5800 रुपए बिकता था, वो 2400-2500 रुपए बिक रहा है। जो हमारा धान 3500 रुपए बिकता था, वो 800-900 रुपए बिक रहा है। आपकी शंका है, हमारी शंका है, आप लोग जो बोलते हो उस पर विश्वास नहीं रहा है। जो करना है आपको रिटिन में करिए, लिखित में करिए, कानून में परिवर्तन कीजिए। और आप लोग बार बार कहते हो, बोलने दीजिए अग्रवाल साहब, उन्हें बोलने दीजिए। मिस्टर अग्रवाल, यू हैड योर से, लेट हिम टॉक। बोलिए बोलिए साहब, मलिक साहब बोलिए। हम वो कर देंगे। अरे जो करना है आपको कानूनी रूप से करिए। आप लोग अभी तक
मुझे तो इनके ऊपर ये शंका हो रही है कि जो लोग वहां सरकार के प्रतिनिधि बात करने जाते हैं उनको कोई बात करने का अधिकार भी है कि नहीं है, या वैसे ही मंत्री बना रखे। हमको लगता है कि कहीं ऊपर से कॉर्पोरेट जगत ने इनके ऊपर दबाव डाल रखा, बंधन बना रखा। जब किसानों ने लिखित रूप में लेटर दे दिया कि हमको इन 4 मुद्दों पर बात करनी है, तो उन 4 मुद्दों पर अपने घर को टटोल के आइए, बातचीत करके आइए, अपने जहां पूछना वहां पूछ के आइए अपने आकाओं से। और जब आके बात करिए ना, फिर कहते हैं तारीख, फिर कहते हैं तारीख, फिर कहते हैं तारीख। अरे 50 किसान शहीद हो चुके हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। इतने में तो हम एक देश को अपने कब्जे में ले लेते। अगर हमारे 40 जवान शहीद होते हम पूरा पाकिस्तान कब्जा कर लेते। और आप लोग बोलते भी नहीं हो। किसान वहां ठंडी में पड़ा हुआ है, बरसात में पड़ा हुआ है, आप लोग घरों में कंबलों में सो रहे हैं। कुछ थोड़ी बहुत निर्दयता हो, शर्म हो तो आप लोग उनके सम्मान में खड़े होकर, आज तक हमारे प्रधानमंत्री ने 2 शब्द मौन के नहीं रखे हैं, किसानों के लिए हमदर्दी नहीं की है। ये हम लोगों से विपक्ष जैसा व्यवहार कर रहे हैं। हम ही लोग वो हैं जिन्होंने आपको वोट दिया था, सत्ता तक पहुंचाया था। हम लोग सरकार बदलने नहीं आए हैं, हम आप ही लोगों को बातचीत करके आप ही से समाधान निकाल कर और आप ही से ये काले कानून वापस कराएंगे। हमको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। आप ही लोगों ने हमसे वादे किए थे अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन है कि हम सड़कों पर पड़े हुए हैं, आप घरों में सो रहे हो। गोपाल अग्रवाल जी, जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना अब इतना वीक हो गया है सर कि आपको अभी साफ सुनना पड़ रहा है कि आप कॉर्पोरेट की जबान बोल रहे हैं। ये अब क्या बोलना चाहेंगे? जी देखो, कॉर्पोरेट की जबान बोलने वाली बात, आप आशंकाएं और अपेक्षाएं किसी की एजेंडा डालना कोई अलग बात है, लेकिन आप बताइए, आप इन्होंने अभी मलिक साहब ने क्या कहा है कि हमारे जो धान के दाम है या जो वो उसके दाम है वो कम मिल रहे हैं। अब ये कैसे होगा? क्या आप सोचते हो कि सारा काम सरकार खरीद ले? जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं आएगा, किसान वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को अपने किसान जगहों पे नहीं लगाएंगे, मंडियों में रिफॉर्म नहीं करेंगे, मार्केट रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, बिचौलियों को बीच में से नहीं हटाएंगे। अब आप 2400 में बेच के 5800 में और जनता को 6000 में और 6500 में कोई चीज मिल रही है, तो कौन बीच में पैसा खा रहा है? आप अग्रवाल साहब किसान तो यही कह रहे हैं ना, ये सब करिए पर एमएसपी को कर दीजिए कि जो कॉर्पोरेट है वो भी एमएसपी के नीचे खरीद ना कर पाए, वो तो यही कह रहे हैं। अरे तो जब बिचौलिए हटेंगे प्रीति जी, बिचौलिए ही तो खा रहे हैं सारा पैसा। आज इनसे 2400 में खरीद के 6500 में कौन बेच रहा है? सरकार तो नहीं बेच रही, सरकार तो 5800 में ही खरीद रही है। कोई 2400 में इनको खरीद के कौन बेच रहा है? 5800 और 6000 में वो बिचौलिए हैं और उनके हाथ में ये फंसे हुए हैं। तो आप प्रीति चौधरी जी, एक क्वेश्चन और करूंगा अग्रवाल जी से। अग्रवाल जी को बोलने दीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगी, उन्हें बोलने दीजिए। अग्रवाल जी बोलिए। ये विषय समझिए। आप खुद कह रहे हो कि सरकार 5800 में खरीद, मैं आपके डेटा ही ले रहा हूँ। सरकार एमएसपी पे 5800 में खरीद रही है, तो सरकार तो 15% ही खरीद रही है वर्तमान में। बाकी 85% आपका माल 2400 में बिक रहा है, वो खरीद, और जनता को तो 2400-2500 में नहीं मिल रहा ना, जनता को तो 6500 में ही मिल रहा है। तो ये बीच का 2400 से खरीद के 6500 में कौन कर रहा है? ये आपके साथी जो बिचौलिया आपके आंदोलन को फाइनेंस कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट है, उसको ही तो हम खत्म करने के कोशिश में, ताकि अग्रवाल साहब आप क्या एक चार्ज लगा रहे हैं कि ये पूरा आंदोलन जो 38 डेज तक आया ये बिचौलियों ने फाइनेंस किया है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ किसानों को बरगला रहे हैं, आंदोलन किसानों का है। तो आपको लगता है कि किसान इतना बेवकूफ है कि बिचौलिया उनको बेवकूफ बना देंगे? की बात नहीं मैडम, बेवकूफ की बात नहीं है। अभी आपके सामने बता रहे हैं, ये बताएंगे क्या बात है, इसके बीच में क्या आ रहा है? अग्रवाल जी सही कहा। मलिक जी आप आंसर करना चाहेंगे, फिर मैं बालियान जी को भी लाना चाहूंगी। अग्रवाल जी एक बात बताइए, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप सत्ता में क्यों बैठे हो? आपका मंत्री चली जाती है, आपके विधायक चले जाते हैं, आपके सांसद चले जाते हैं, आप उनको नहीं संभाल पाते और विपक्ष इतना मजबूत हो गया जो किसानों को बहका रहा है। आपकी जो पार्टनर थी हरसिमरत कौर जी, वो इस्तीफा देकर चली गई। उत्तर प्रदेश से विधायक थे अवतार सिंह भड़ाना जी, वो इस्तीफा दे गए। गुजरात के सांसद इस्तीफा दे गए और तमाम लोग आपकी पार्टी छोड़ जा रहे हैं। आप उनको नहीं समझा पा रहे, किसानों को क्या समझा पाएंगे आप? चलिए, आई वांट टू ब्रिंग इन, करते हैं आप लोग जो वादा करते हैं वो झूठे वादे करते हैं। आपने उत्तर प्रदेश के किसानों से वादा किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। 14 हफ्ते हो गए, अभी तक नहीं हुआ है।
अब किसान कैसे विश्वास कर ले आप में? बात पे ले जाता हूँ, गन्ने में एमएसपी नहीं है। पर साबित मलिक जी, जो 3500 करोड़ दिए थे, वो तो प्रधानमंत्री ने बोला था कि गन्ने की वो आपको दे रहे हैं 3500 करोड़। वो 3500 करोड़ किसानों को नहीं दिए, जो निर्यात करेगा, चीनी निर्यात वालों को दिए, वो भी व्यापारियों को दिए हैं। किसानों को एक फूटी कौड़ी नहीं दी है, और पिछले 4 साल से 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ाया है। ओके, मैं एक बार बालियान जी को लाना चाहूंगी। अशोक बालियान जी, आपको, क्योंकि आप हमेशा यूजुअली मिडिल ग्राउंड लेते हैं, आपको भी क्या दिखता है? क्योंकि ये तो थमने वाला नहीं है। अब 8वीं बार टॉक्स में कुछ नहीं हुआ है, 9वीं बार क्या होगा जो 8वीं बार में नहीं हो पाया? देखिए, ये आज वार्ता जो हुई है और वो असफल हुई है, ये हमारे सबके लिए बहुत ही चिंता का विषय है। ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, जो किसान हित की राजनीति करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए भी चिंता का विषय है। और मैं समझता हूं कि जो 8 तारीख की बात रखी गई, नेताओं से भी बहुत सब लोगों से बातचीत की इस बीच में, और मैं चाहता हूं कि वो एक एक पॉइंट पर फिर पुनः 8 तारीख को वार्ता करें। और मैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहता हूं, किसान नेताओं से भी, कि जो हमारे 3 कृषि सुधार के लिए कानून है, हो सकता है कानून के किसी प्रावधान में किसान का कोई उनको अहित दिखता हो, तो वो निश्चित तौर पर उस प्रावधान पर बात करें, और सरकार को भी उस प्रावधान पर खुले मन से उनकी बात सुननी चाहिए। देखिए, हम लोग यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम किसान के बेटे हैं। हम किसान के लिए अगर लड़ते हैं तो हमें उसके हक की सही बात कहनी चाहिए, न उसको भ्रम में डालना चाहिए, न उसको किसी दुविधा में डालना चाहिए। और सरकार से हम ठीक बात करेंगे, तथ्यों के साथ बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर वास्तविक रूप में हम किसान की भलाई का काम करेंगे। तो मेरा तो ये व्यू है इसमें। प्रीति जी, अग्रवाल जी, मैं आपको ना, क्योंकि अब जो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, मैं आपको थोड़े विजुअल्स दिखाऊंगी, क्योंकि उससे भी बहुत किसानों को लग रहा है कि ये आप देखिए, ये उग्रवादी तो है नहीं, आप इन पे टियर गैस चला रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं। जो रेवाड़ी में जो हुआ, वो आप विजुअल्स देख लीजिए, वही हम प्ले करेंगे। ये कल शाम की बात है, आज टॉक्स थी। रेवाड़ी से 3000 के करीब जो वहां के किसान थे, वो आना चाह रहे थे दिल्ली, आपने उनपे टियर गैस कर दी, उनपे लाठी चार्ज कर दिया। नहीं, देखिए प्रीति जी, देखो, कुछ चीजें सरकार के लेवल पे कई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं जो केंद्र सरकार के पूरे विषय भी नहीं है। प्रदेश सरकारों के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो भी आवश्यक, किसानों को सबसे पहले कहा था कि आप जो वहां पे आप आ जाएं, एक स्थान निश्चित किया था कि वहां पे आप सारी सरकार सुविधाएं करेंगे, आप वहां पे रहिए, बैठिए, इलाज भी होगा, सारी फैसिलिटी सरकार देगी, और आप वहां पे अपनी बात को किसान जो केंद्र सरकार के लीडर्स है, वो भी वहां मंत्री भी जाएंगे, बात करने को तैयार है। किसान उस पर नहीं माने और अड़े रहे कि हम रास्ता रोकेंगे, दिल्ली को पूरी तरह से घेराव करेंगे। अल्टीमेटली बताइए, प्रजातंत्र में कोई भी एक ग्रुप इस तरह से कानूनों को अपने हिसाब से बदल सकता है क्या? या क्या प्रजातंत्र के लिए ठीक है क्या? जो पार्लियामेंट से वैध पास कानून है, उसके ऊपर इस तरह से क्या सरकारें चलती हैं क्या? कभी मतलब आप पूरे विश्व में आप देखिए, प्रजातंत्र में इस तरह सरकारें चल ही नहीं सकती। इंस्टीट्यूशंस को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो मलिक साहब, ये बंदूक की नोक पे तो नहीं हो सकता ना, जैसे अब वही कह रहे हैं गोपाल अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आपको जानकारी है, अग्रवाल जी, किसान हमेशा से अपने यहाँ से चलाए शांतिपूर्वक दिल्ली आना चाहता है। पहले भी सरकार ने रोका है, गड्ढे सरकार खोदती है, कंटेनर सरकार अड़ाती है, पानी सरकार चलाती है, गोलियां सरकार चलाती है। और वही किसान अगर ये कह दे कि हम पक्ष में बात करने जा रहे हैं, तो उसको सत्ता के लोग अपनी गाड़ियों में बैठा के दिल्ली लाते हैं। और जो आम किसान है, बालियान जी, मैं आपके पास जाना चाहूंगी। बालियान जी, ये जो विजुअल्स आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज टॉक्स थी, अब उसकी कल की रात को रेवाड़ी में आप टियर गैस यूज कर रहे हैं, आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, तो फिर इसमें मैसेज क्या जाता है किसान को? देखिए, बल प्रयोग हमेशा कष्टदायी और दुखदायी होता है, चाहे वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में हो। उसको कोई कभी भी न सरकार वैसे करना चाहती है, न किसान करना चाहते, लेकिन परिस्थितियां हमेशा दुखदायी होती हैं। तो मैं समझता हूं कि दोनों ही पक्षों को इसमें संयम से काम लेना चाहिए। अगर वो देश हित की सोचते हैं तो ये दोनों पक्षों को संयम से काम लेना चाहिए, मेरा इसमें ये कहना है। जी अग्रवाल जी, बोलिए, आप कह रहे थे कुछ। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अब आप ये कह रहे हैं 1500 टावर किसने तोड़े? कोई बाहर के लोग आए थे क्या? किसानों के कोई ग्रुप है ना। तो फिर अब ये कहना कि
ये क्या गलत नहीं है क्या? इंडस्ट्री को पूरी तरह से ये बोल देना कि वो लुटेरे हैं, चोर उचक्के हैं। अरे उनने क्या किया है? आप उनको उनके ऊपर मतलब कहीं तो आप इलॉजिकल और सब चीजें मिक्स हो गई है। किसान को समस्या है, हम मानते हैं। राजनीति लोग अपने रोटियां सेक रहे हैं, किसान राजनीति कर रहे हैं, ये कोई नहीं कह रहा, लेकिन इनके आंदोलन पे राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। जो कनाडा के प्रेसिडेंट हैं वो भारत के ऊपर केस करा हुआ है वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट में कि आप ये जो एमएसपी क्यों देते किसानों को, और पब्लिक में बोल रहे हैं कि हम किसानों के साथ। इस तरह की घटिया राजनीति जब विदेशी ताकतें कर रही हैं, फिर खालिस्तान के लोग झंडे लेके कहीं विदेशों में घूम रहे हैं। गोपाल अग्रवाल जी, अभी आप कह रहे हैं कि ये फॉरेन हैंड है इसके पीछे, अगर विदेशी ताकत। प्रीति जी आप बात को समझिए, मैं किसानों को कुछ लोग अपना करने का प्रयास है, किसान नहीं कर रहे। अब जो खालिद मोहम्मद और उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो भी तो वहां बैठे थे। एनआईए ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। तो किसान के आंदोलन सीधे कह दीजिए कि आप लोग सत्ता को कवर नहीं कर पा रहे हो, आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपके सहयोगी भी छोड़ने जा रहे हो, किसानों को भी आप समझा नहीं पा रहे हो। विदेश में आप जो घूमते थे, इतने साल हो गए जब से सरकार बनी, विदेश घूमते थे, वहां भी आपकी पोल खुल गई है। आप लोगों पे हर जगह मुकदमे हो रहे हैं और आप लोग जो है किसान के कंधे पर रख कर चलाना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ही के नेता थे, हमारे नेता थे, माननीय अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, दोनों ने इन बिलों का विरोध किया था, दोनों सदन के नेता थे। अब वो आजकल है नहीं, उनकी दिवंगत आत्मा को हम प्रणाम करते हैं और हम कहते हैं उन दोनों नेताओं ने विरोध किया था कि नहीं किया था? वो आपकी पार्टी के लीडर थे कि नहीं थे? ऐसी क्या बात थी कि जिस कानून का आपने विरोध किया आज उन्हीं को लेके आप आ रहे हैं? कहाँ आप पे कॉर्पोरेट का दबाव है? क्या कृषि मंत्री जी के हाथ में इतनी भी अग्रवाल जी को बोलने दीजिए। मलिक साहब, अग्रवाल जी बोलना चाह रहे हैं कुछ, बोलिए अग्रवाल जी। देखिए, ये जो गलतफहमी मैं ठीक करना चाहता हूँ। हमने जो भी पहले विरोध किए एपीएमसी को डिसमेंटल करने के लिए, हमने इन तीनों सुधारों में वर्तमान एपीएमसी और एमएसपी के स्ट्रक्चर को डिसमेंटल नहीं किया। पहले जो बातें हो रही थी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, शरद पवार जी ने कहा कि एपीएमसी को डिसमेंटल कर दिया जाए, तो उन्होंने उसको विरोध किया था। हम अभी आपके साथ हम नहीं कर रहे, इसीलिए हमने बीच का रास्ता निकाला है कि वर्तमान स्ट्रक्चर जो स्टेट कह रहे हो कि हम 15 बदलाव कर देंगे। 15 बदलाव क्यों कर रहे हो आप? जब इतना अच्छा है, 15 बदलाव करने के लिए क्यों तैयार हो गए आप? और ऐसी क्या थी कि कोरोना काल में आपको अध्यादेश लाना पड़ा? इसको आप लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा करा के ला सकते थे। जब देश कोरोना काल से गुजर रहा था तो रात के अंधेरे में आप क्यों लेके आए इसको अध्यादेश के रूप में? चलिए, अब मुझे एक चीज बताइए मलिक साहब, आपको लगता है कि मेरी बात पूरी नहीं हुई प्रीति जी? जी कंप्लीट करिए अग्रवाल जी, कंप्लीट करिए। प्रदेश को इसमें छूट दे दी किसानों की डिमांड के बाद। जो प्रदेश जैसे पंजाब, हरियाणा, कुछ प्रदेशों में इनको लगता है कि हमें वर्तमान एपीएमसी के स्ट्रक्चर के अंदर ही अपना माल बेचना, उसी को चलाना, हमने छूट दे दी कि जो प्रदेश चाहते हैं, हमारे पास 36 प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज है, उत्तर प्रदेश है और 8 यूनियन टेरिटरी, जो प्रदेश चाहते हैं कि नए कानूनों को के हिसाब से एक नई प्राइवेट मंडियों को नहीं लाए, उनको मना कर आप उसको भी रजिस्टर कर दीजिए, उसमें भी फीस लगा दीजिए, उनके अंदर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिए और वर्तमान स्थिति को चलाए रखिए। जो प्रदेश को छूट तो दे दी और लेवल प्लेइंग फील्ड भी क्रिएट किया, फिर प्रॉब्लम क्या है मुझे तो ये समझ नहीं आता। चलिए मलिक साहब, अब क्या अब आपको लगता है कि 9वीं बार जब आप मिलेंगे कुछ होगा, और अगर कुछ नहीं होगा तो फिर क्या होगा? देखो, किसानों को पहले दिन से आशा है, किसान पॉजिटिव सोच के ही अपने घर से चला है कि हम दिल्ली जाएंगे, सरकार हमारी बात सुनेगी और उसमें जो भी कमियां हैं उनको वापस लेगी। और हम आज भी यही कहते हैं, आज भी हमें सुबह से उम्मीद थी कि सरकार हमारी बात सुनेगी, लेकिन हमको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जब एक एक पॉइंट लिखित में सरकार के पास है, क्या वो तैयारी करके नहीं आती, या वो ऊपर बात करके नहीं आती, या उनके कहीं से हाथ बंधे हुए हैं कॉर्पोरेट की वजह से? वो क्यों किसानों को सड़कों पर रखना चाहते हैं? हम तो आज भी यही उम्मीद लगाए हैं कि किसान जाएगा, ये हमारी मांग मानेंगे और हम लोग अपने खेतों में जाकर काम करेंगे। चलिए, 9वीं बार में यही हो जाए, कुछ तो हो। लेट्स सी दैट वन ऑफ द पार्टीज ब्लिंक एंड देयर इज सम मिडिल ग्राउंड दैट इज रीच्ड। अप्रिशिएट ऑल थ्री ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया कि आप तीनों हमारे से जुड़े। थैंक यू देयर। बट आई एम गोइंग टू लीव आवर व्यूअर्स विद दीज विजुअल्स. Yes, there have been visuals that have been coming, which some of them are heartbreaking because you see our farmers
sitting out in these cold temperatures, in the rain, in this weather. But there are some heartwarming visuals as well. Now, whether you agree with the farmer agitation or you don't agree with the agitation in terms of the laws, but most of us are standing behind our farmers. So now, 8 kabaddi teams across India, Punjab, UP, Haryana, name it, all arrived at the Singhu border to entertain our farm protesters. My colleague Kamal filed the story. When the going gets tough, the tough get going. Here is seen at Singhu border. It says, welcome to Delhi. This is where the mats have been kept. This entire place have been made into an arrangement for a match, a kabaddi match. But here are some of the players. आप लोग बच्चियों के साथ आए हैं, क्या मकसद है? मकसद यही है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो कि लगभग 1.5 महीने से 2 महीने पंजाब में बैठे, अब यहाँ लगभग महीना हो चुका है। मौसम खराब होने के चक्कर में यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारा जी करता है हम अपने किसान भाइयों के साथ आकर उनके साथ मैच खिलाएं, बच्चों को लेकर आए। क्या क्या मकसद है, क्योंकि स्पोर्ट्स का मैदान अलग होता है, अगर हम बात करें कबड्डी का मैदान अलग है और किसानों का मैदान अलग है, तो ये कहाँ मिल रहे हैं? मैम, मैदान तो चाहे कुछ भी हो, जंग तो हर जगह ही होती है। कंपटीशन तो हर जगह ही है, या इधर है या उधर है। तो आप इसको जंग क्यों कह रहे हैं? मैम, हर चीज में कंपटीशन तो होता ही ना किसी चीज के लिए इंसान लड़ ही रहा है। किसान अपनी चीज के लिए लड़ रहे हैं और हम अपने गेम के वजह से लड़ रहे हैं। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.